بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کراچی کے شہریوں کو جدید سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ یلو لائن BRT منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پروجیکٹ کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 21 کلومیٹر طویل ٹریک پر 268 EV بسیں چلیں گی۔ اکثر شاہد کی رپورٹ۔ شہر عقائد کے مکینوں کو جدید سہولیات فراہم کرنے کا مشن۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن متحرک۔ یلو لائن BRT منصوبے کا تفصیلی دورہ۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن بولے، یلو لائن کی 21 کلومیٹر طویل ٹریک پر 268 EV بسیں چلائی جائیں گی۔ منصوبے پر 100 ارب سے زائد کی لاگت آئے گی۔ تمام بسیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائی جائیں گی۔ 18 ماہ کا وقت مقرر ہے، لیکن ہم کام پہلے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف یہ ایک پروجیکٹ کراچی کا یہ 100 ارب روپے سے زیادہ کی جو ہے وہ اس میں شروع کیا جا رہا ہے۔ 21 کلومیٹر جو ہے کا یہ ٹریک ہوگا۔ جام صادق برج جب آپ کھڑے ہیں یہاں پہ پیرالل بھی جام صادق برج ایک اور بھی نہیں بن رہی ہے، اور یہاں پہ وہ برج جو ہے یہ اس کا پورا یہ ٹریک جو ہے وہ اس 21 کلومیٹر کے جو ہمارا بسز کا جو ہمارا روٹ ہے اس میں وہ استعمال کی جائے گی۔ اس میں بسز جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ شرجیل انعام میمن کا مزید کہنا تھا، اسرائیل اس وقت ایران، فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ بانی PTI کی حمایت بھی جاری ہے۔ اگر 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی اور مولانا سے بات کرنے کا وقت آیا تو ہم بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی نیشنل ہیرو تھا جس پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ آج وہی اسرائیل فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل لیبیا پہ حملہ کر رہا ہے، آج وہی اسرائیل ایران پہ حملے کر رہا ہے۔ اگر کوئی خامی کو بھی رہ بھی گئی ہوگی تو مولانا صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے، اور مولانا صاحب ہمیشہ جو ہے وہ جو جائز بات پہ قائل ہو جاتے ہیں، تو مولانا صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر کے مطابق اگر 27ویں آئینی ترمیم میں کہیں خامیاں پائی گئیں اور مولانا فضل الرحمان سے بات کرنے کی ضرورت پڑی تو بلاول بھٹو بات کریں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اکثر شاہد T21۔ لیاری ایکسپریس وے پر سفر کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، اوور سپیڈنگ پر اب ہوگا فوری چالان۔ ایکسپریس وے پر NHA نے جدید لیزر گن کیمرے کا استعمال شروع کر دیا۔ مبشر حسین کی رپورٹ۔ غیر ضروری اوور ٹیکنگ اور تیز رفتاری اب نہیں چلے گی۔ NHA نے لیاری ایکسپریس وے پر جدید لیزر گن کیمرے کا استعمال شروع کر دیا۔ انچارج DSP نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس خالد حمید کہتے ہیں کہ لیزر گن کیمرے کے ذریعے سفر کرنے والی گاڑیوں کی سپیڈ کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ روڈ پر ہم انفورسمنٹ بھی کرتے ہیں جس میں لین وائلیشنز کنٹرول کی جاتی ہے، اوور سپیڈنگ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جس پہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکوپمنٹ موجود ہیں اوور سپیڈنگ کے، جو کہ ہم 24 آورز جو ہے وہ روڈ پر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ خاتون افسر سمینہ نے بتایا کہ لیاری ایکسپریس وے پر موٹر بائکس، رکشہ اور ہیوی ٹریفک پر پابندی عائد ہے۔ یہ ہمارے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کی ہیلپ سے ہم اوور سپیڈ وہیکلس کو روکتے ہیں، ان کو چلان ایشو کرتے ہیں اوور سپیڈنگ میں۔ اس کے علاوہ ان کے لائسنس بھی چیک کیے جاتے ہیں، ادر وائلیشنز میں سیٹ بیلٹ سب کیٹیگریز کو چیک کرتے ہوئے ان کے چلان بھی انہیں ایشو کیے جاتے ہیں۔ ترجمان NHA اینڈ موٹر وے قمر نیازی نے کہا کہ جدید لیزر گن کیمرے کے استعمال سے اوور اسپیڈنگ کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ 24 گھنٹے ہمارے افسران یہاں موجود ہوتے ہیں، کسی بھی صورت میں ہم موٹر سائیکل کو الاؤ نہیں کرتے، کیونکہ ایک سپیڈی روڈ ہے، یہاں صرف LTV گاڑیاں اور کارز الاؤ ہیں، تو بائکس کے آنے کی وجہ سے حادثہ ہو سکتا ہے، لہٰذا رولز کے مطابق ہم کسی صورت بائکس کو الاؤ نہیں کرتے، ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ لیاری ایکسپریس وے پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کئی دہائیوں سے عوام کے بہتر اور محفوظ سفر کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، لوگوں کی مدد کے ساتھ انفورسمنٹ بھی کرتی ہے۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ مبشر حسین T21۔ غیر قانونی اور غیر معیاری RO پلانٹس کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملیر میں فوڈ اتھارٹی نے 8 غیر معیاری RO پلانٹ سیل کر دیے۔ 2,90,000 روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ پلانٹس میں پانی کے ٹینکوں میں فنگس اور ناقص صفائی پائی گئی۔ پانی کا بحران، ہر شہری پریشان۔ شہر کے مختلف علاقوں کی طرح جہانگیر روڈ کے مکین بھی پانی کو ترسنے لگے۔ 10 روز سے پانی غائب، RO پلانٹس پر رش، شہریوں کے حکام سے توجہ نہ دینے کی دہائی۔
वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शदीद गर्मी में पानी की तलाश। जहांगीर रोड के मकीन 10 रोज से पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वाटर कॉरपोरेशन ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। इलाका मकीन कहते हैं वाटर कॉरपोरेशन का अमला पानी की किल्लत के कभी कुछ तो कभी कुछ वजूहात बताता है। हुक्काम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। जिनके पास पैसे नहीं उन्हें दूर दराज से पीने का पानी भर के लाना पड़ता है। सुजुकियों से भी पानी खरीद रहे हैं। भाईजान हम तो है ना 1000 रुपये रोज कमाने वाले हैं, 6000 रुपये हफ्ते में लेके आते हैं, तो समझ लें वो 6 के 6 ही पानी के अंदर गए हैं। खाना नहीं खाया है मगर पानी की ज़रूरत है, पानी हमारे घर की ज़रूरत है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। भूखे हम ज़रूर रह सकते हैं मगर बगैर पानी के नहीं रह सकते। 40 रुपये से लेके 50 रुपये तक की भर रही है और सुजुकी जो है 1200 से लेके 2000 रुपये तक की में मिल रही है हमें, वो भी मिन्नत करने के ऊपर। 6 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। कभी कोई सी लाइन डैमेज हो जाती है, कभी कौन सी ये मोटरवे बन रहा है जो सब्ज़ी मंडी पे, यहाँ पे कोई इशू रहता है हमेशा के लिए। तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है इस इलाके का, तो वैसी कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 6-6, 8-8, 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि जहांगीर रोड में पानी की फराहमी को यकीनी बनाकर उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। स्टार गेट के करीब इलाकों में ताफ़ुन ज़दा पानी की सप्लाई, नाकाबिल इस्तेमाल पानी से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई ना हुई, इलाका मकीन सीख पार। बनो काबिल करो खिदमत। जमात इस्लामी के नौजवानों के लिए IT कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग समेत दीगर IT कोर्सेज शामिल। हॉकी ग्राउंड न्यू कराची में एंट्री टेस्ट, 12,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। मोहतमिम जामिया बनूरिया मुफ्ती मोहम्मद नोमान नईम भी शरीक हुए। तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई की। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि कोर्सेज मुकम्मल करने वालों के लिए मुलाजमत का भी एहतमाम करेंगे। जो अभी आप देंगे इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इंटरव्यूज का एक सिलसिला होगा और इंटरव्यू के बाद फिर इंशाअल्लाह कोर्सेज का आगाज होगा कि हम कराची के नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे, इनका हाथ थामेंगे। इसलिए इनका हाथ थामेंगे कि ये अपने कदमों पे खड़े हो सकें, अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं 50,000 नौजवान तुलबा और तालिबात इस मुख्तसर से 2 साल के अरसे में इन कोर्सेज से पास आउट हुए हैं और हमने उनके लिए बनो काबिल जॉब्स के हवाले से एक पोर्टल का आगाज किया है जिसमें हम चाहते हैं कि इन नौजवान तुलबा और तालिबात के लिए जॉब्स का भी इंतजाम हो, इनको इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक किया जाए और यहाँ से फारिग होने के बाद फिर ये मुआशरे में आगे बढ़ सकें, अपना किरदार अदा कर सकें, अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। MQM का IT प्रोग्राम विजन ऑफ फ्यूचर सुजानी टाउन में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मगुल सिद्दीकी, सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने खिताब किया। सुजानी टाउन में नौजवानों के यूथ कन्वेंशन का ये ट्रेलर आज देखा है और ये आज रिहर्सल है। इंशाअल्लाह चंद माह के अंदर सुजानी टाउन में नौजवानों का आज तो यूथ कन्वेंशन है, बहुत जल्द MQM पाकिस्तान के जेरे तहत एक नौजवानों का बहुत बड़ा तारीखी जलसा सुजानी टाउन में इंशाअल्लाह मुनक्कद होगा। जो ई-कॉमर्स के कोर्सेज यहाँ ऑफर हो रहे हैं जो 20,000 और 40,000 के हैं, 20 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं MQM कनेक्ट के जरिए। तो यार ये कैंटीन में, कैफेटेरिया में और ये रात को चाय खाने, क्या कहलाते हैं ये, कहवा खाने, चाय खाने, यार अल्लाह के वास्ते उस पर आधा घंटा बैठ जाओ यार, बस 4-4 घंटे सुबह 4-4 बजे तक हम वहां पर हमारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। सबसे पहले तो MQM ने आपके लिए खुद एक जमात की हैसियत से, एक तहरीक की हैसियत से जदीद दौर के तमाम तकाजों को पूरा करने वाले कोर्सेज आपके सामने रख दिए हैं। अगर MQM को 2 महीने और मिल गए तो कराची में 6, मीरपुर खास में 1 और हैदराबाद में 1 यूनिवर्सिटी आ चुकी होगी। अगर MQM को 6 महीने और मिल गए तो कराची में 12, हैदराबाद में 3 और मीरपुर खास में 2 यूनिवर्सिटी आ चुकी होंगी।
इंशाअल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कैंपस कराची में आने वाला है। नेफ्टेक का मेगा सेंटर कराची में आने वाला है। 10 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिजाइन कराची में होगा। इंशाअल्लाह अगले महीने स्किल यूनिवर्सिटी कराची में होगी। इंशाअल्लाह नवंबर के एंड में न्यू टेक यूनिवर्सिटी भी कराची में होगी। चनारों की वादी में आग और खून की होली के 77 साल। कश्मीर में भारतीय कब्जे और जुल्म सितम के खिलाफ मुल्क भर की तरह कराची में भी एहतजाजी रैलियां, जलसे और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। लियारी टाउन में कश्मीर रैली के शुरका ने शहदाए हुर्रियत को खराज अकीदत पेश किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। लियारी टाउन में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से निकाले जाने वाली रैली में हर रंगो नस्ल का शहरी शरीक दिखाई दिया। रैली में शरीक वजीर आला के मामन खुसूसी उस्मान हिंगोर और जावेद नागोरी बोले, आलमी बरादरी का कश्मीर समेत मुस्लिम ममालिक पर रवैया जानिबदाराना है, जिसे तब्दील करना होगा। हम अपने कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इस मुल्क का हर बच्चा आपके साथ है और इंशाअल्लाह आखिरी जद्दोजहद तक, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। आज का दिन हमारे जो है कश्मीरियों के साथ जो इक़्तिदार यकजहती का दिन है। ये जबरी कब्ज़े को हम दुनिया भर के जितने भी जबरी कब्ज़े में हम उसको मुस्तरद करते हैं, बशमूल ये कश्मीर के कब्ज़ा जो हुआ है। हमारा ये ख्याल है कि आज के दिन के मुनासबत से हम पूरे कौम यकजा हैं और पूरी कौम कश्मीरी अवाम के साथ है। चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच और म्युनिसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान बोले, कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती मैदान में मदद भारत के कब्जे के खिलाफ पूरा पाकिस्तान यक ज़बान है। जुल्म और बर्बरियत का निज़ाम बंद कर दो। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। उनके जुल्म और जबर के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें अक़वाम मुत्तहिदा जाना पड़े, तमाम और फोरम्स पे जाना पड़े। पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा है और हमेशा खड़े रहेगा इंशाअल्लाह। लियारी टाउन की कश्मीर रैली में तलबा, स्काउट्स, सियासी रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए MQM पाकिस्तान पेश रुकन सिंध असम्बली फैसल रफीक कहते हैं कि महकमे तालीम हल्के के तमाम सरकारी स्कूल्स की जिम्मेदारी सौंपे तो तालीम की सूरत हाल बेहतर करके दिखाएंगे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली ने महकमा तालीम से हल्के के तमाम स्कूल की जिम्मेदारियां देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सिटी 21 से गुफ्तगू में फैसल रफीक बोले, सिंध हुकूमत से हमारा मुतालबा था तालीम के निज़ाम को बेहतर किया जाए। इस शहर ने हमेशा मुल्क की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा किया है। अगर इस मुल्क के लोग तालीम याफ्ता होंगे तो यकीनन मुल्क तरक्की ज़मानत है कि तरक्की करता है। बहरहाल सिंध गवर्नमेंट से हमारा यही था तालीम के निज़ाम पे मुतालबा कि निज़ाम को बेहतर किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने बाकायदा तमाम MPs ने चंद स्कूल अपने अपने हल्के के अपने जिम्मेदारी पे लिए हैं ताकि उनका निज़ाम तालीम का बेहतर किया जाए। सरकारी स्कूलों में सहूलियात के फुकदान का जिक्र करते हुए रुकन सिंध असम्बली फैसल रफीक का कहना था कि बहुत से स्कूल जहां बच्चे आज भी ज़मीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, चाहते हैं तालीम का निज़ाम बेहतर हो। जहाँ हमने अब जब देखा इस शहर के निज़ाम की तालीम को तो बद से बदतर हुआ जा रहा है कि स्कूलों में बैठने के लिए बच्चियों के लिए जगह नहीं, दरियों पे बैठते हैं, वॉशरूम्स नहीं है और टीचर्स अगर हैं भी तो वो बाकायदा बासलाहियत नहीं है कि वो बच्चों को जो है सही तरीके से पढ़ा सकें। तो ये सोच के हमने अपना कदम बढ़ाया है कि इन सब की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट के साथ अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। शहर की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार करते हुए रुकन सिंध असम्बली फैसल रफीक का कहना था, MQM एक जिम्मेदार जमात है, शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करेंगे। कैमरामैन शहरियार अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि महंगाई से परेशान हाल ताजिर छुट्टी के रोज़ भी बाजार खोलने पर मजबूर। सदर ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद सईद खान कहते हैं कि महंगाई की वजह से अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। महंगाई का राज, मार्केटों में मंदी, ताजिर बिरादरी सूरत हाल से परेशान। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के सदर सईद खान का कहना है कि महंगाई की वजह से अखराजात पूरे नहीं हो रहे। महंगाई कम होने की बातें होती हैं, ये कम होती भी नजर नहीं आ रही। फौरी इकदाम किए जाएं। हुकूमत तो ऐलान करती है और ऐलानों पे जो अमल है वो तो होता नहीं। हमारी ये मार्केट छोटी मार्केट है, हम इतवार को भी खुले रखते हैं
तो हम जो है ग्राहकों को हम चाह रहे हैं कि भाई ग्राहकों को हम सहूलत दे वो दे, लेकिन जब पीछे से महंगाई है, टैक्सों की भरमार है, बिजली की लोड शेडिंग है, बिजली मिलता नहीं है, बिलें इतने आ रही हैं कि हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। दुकानदार बोले, महंगाई ने कमर तोड़ दी, कारोबारी औकात कार में बिजली मिलती नहीं, कारोबार कैसे करें? देखिए यहाँ लियारी के ज़्यादातर बिजली की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। हमारा ये दर्जी का काम है कि 1 घंटे लेट आते और 4 घंटे लेट गायब होते हैं, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर है। भाई बिजली और महंगाई ने इतना परेशान किया हुआ है कि हमारे हालात बिल्कुल बेकार कर दिए हैं, ना काम है ना धंधा है, कुछ भी नहीं है, कमर तोड़ दी गई है हमारी। और शाम को जो है ना खर्चे तक के पैसे नहीं होते हमारे पास, घर का गुजारा किस तरह करें। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई में कमी के दावे कर रही है, मगर हकाइक ये है कि इसमें इजाफा हो रहा है। कैमरामैन हसनैन के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कच्ची मेमन बरादरी के मसाइल हल करने का आज़म मारूफ बिजनेसमैन शर्जील गोपलानी ने कमान संभाल ली। कहा कि बिरादरी के नौजवानों को नौकरियां फराहम करेंगे। काविश मेमन के बिजनेसमैन शर्जील गोपलानी के नाम बड़ा एजाज। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के बाद कच्ची मेमन मरकजी जमात की बागदौड़ भी संभाल ली। मरकजी जमात के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए शर्जील गोपलानी ने कहा कि बिरादरी के मसाइल हल करने के लिए मैदान में आया हूँ, नौजवानों को नौकरियां फराहम की जाएंगी। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए भी काम करूँगा, स्कूल्स के मयार को बेहतर बनाएंगे। मेरा इरादा ये है कि थोड़ा बिजनेस पॉलिटिक्स को थोड़ा सा पॉज देना पड़ेगा और उस पर बिरादरी को ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूँगा अपने जो 3 साल जो हैं वो बिरादरी को फुल टाइम दे सकूँ। कोशिश करेंगे कि हमारी बिरादरी के जो मसाइल हैं उसको हम हल करते हैं, और ख़ास तौर पे जो मसला है वो है जॉब्स और बिज़नेस का, तो उसके लिए हम अपनी कोई पॉलिसीज़ अच्छी लाएंगे। साथ साथ हेल्थ के सेक्टर में भी काम करना है। एजुकेशन का हमारा एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जितने भी जमात खाने होते थे उसमें स्कूल मौजूद होते थे, ये पुरानी एक रिवायत थी। तो कोशिश करेंगे जो हमारी जहाँ जहाँ बिरादरी है वहाँ पर हम स्कूल्स को जो है वो अपग्रेड भी कर सकें और तालीम का म्यार भी बेहतर कर सकें। सेक्रेटरी जनरल शकीर बानोटिया बोले, सफ़ेद पोश अफराद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, इनकी खामोशी से मदद करेंगे। वाइट कॉलर्स इस वक्त जो है वो बड़ा परेशान है और वो दरवाजे पे आने के लिए भी परेशान है। डेफिनेटली एक बंदा जब इस परेशानी में आ जाता है तो फिर वो खुददारी की चादर में आता है बड़ी तो हम डोर टू डोर चाह रहे हैं कि हम उनके घरों पर भी जाएं, ऐसे लोग आएँ जिनको एक ऑनलाइन सिस्टम भी मुतारफ़ करवा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। और कुछ वेबसाइट्स हमारी बनी हुई हैं जो प्रीवियस बनी हुई हैं, उनको अगर अपडेट करके इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। जज़ाक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीद अहमद नागपुर वाला ने कहा कि कच्ची मेमन बिरादरी इस शहर की स्टेक होल्डर है, हम मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। मेरी कम्युनिटी का इलेक्शन है, 2 मकासद थे कि मेरी कम्युनिटी को अवेयरनेस का प्रोग्राम देना था और फिर एक पैगाम देना है कि गवर्नमेंट को कि कच्ची मेमन कम्युनिटी वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है और इसके अंदर डेमोक्रेसी है जो आज नज़र आ रही है, और हम भी इस शहर के स्टेक होल्डर हैं और हम इस शहर के लिए इस मुल्क के हामी हैं। और ये कच्ची मेमन वो हैं जिन्होंने मुल्क बनाया है, मुल्क चला रहे हैं और मुल्क को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम इस मुल्क में हर जगह हमारी भी खिदमत ली जाएं और हम ये इलेक्शन करके लोगों को एक जगह जमा कर रहे हैं और सबको ये बता दिया है कि हमारे यहाँ पीस है, कोई भी रिगिंग नहीं है और प्योरली डेमोक्रेटिक है और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कच्ची मेमन मरकज़ी जमात में चेयरमैन की नशिस्त पर शर्जील गोपलानी, सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त पर शकील बानोटिया, शहजाद हुसैन सेक्रेटरी फाइनेंस और इस्माइल डोसलानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की सीट पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। कैमरामैन हसन जाफरी के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और अब आपको बताएं कि पेंसिल की बारीक नोक पर हैरत अंगेज आर्ट वर्क देखने वाला इस शाहकार तख्लीक के शहर में खो जाए। जादुई उंगलियों से हैरान करदा तख्लीकी शाहकार आर्टिस्ट महविश सुल्ताना के बनाए गए शाहकार आर्ट का बेहतरीन नमूना है। इस हवाले से अक्सा शेख की रिपोर्ट। ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी, ना कोई सॉफ्टवेयर, उंगलियों का कमाल, पेंसिल की नोक पर उतार दिया आर्ट का हुस्नो जमाल। ये है कराची के मुनफरिद आर्टिस्ट महविश सुल्ताना, जो अपनी जादुई उंगलियों से ऐसा कमाल दिखाती हैं कि देखने वाला इसके शहर में खो जाता है। पेंसिल पर मुजस्मा, अशकाल और तारीखी मकामात की छोटे मॉडल्स देखने वालों को दाद देने पर मजबूर कर देते हैं। इस शाहकार तख्लीक की माहिर हैं महविश सुल्ताना, जो उंगलियों से ऐसे फन पारे तख्लीक करती हैं कि इस पर तिलिस्माती करिश्मे का एहसास होने लगता है। मैंने बहुत सारी पेंसिलों से गो थ्रू होने के बाद जाके फाइनल एक मैंने शेप बनाई थी, लेकिन इट वाज नॉट लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड शेप बिफोर, इट वाज जस्ट अ सिंपल शेप. आई मीन यू कैन से आई कैन टेक, आई मे बी स्टार्टेड विद समथिंग लाइक दिस, triangle, square, circles.
فن پاروں کی تخلیق کرتے ہوئے مہوش اس فن میں کھو جاتی ہیں. کام کی باریک بینی اور مسلسل توجہ انہیں ذرا بھی تھکاتی نہیں. مہوش کا کہنا ہے کہ کچھ ڈیزائنز بنانے میں طویل وقت اور محنت درکار ہوتی ہے مگر وہ اسے خوشی سے انجام دیتی ہیں. تو لکڑی میں کس طرح سے آپ کارف کر کے بناتے ہیں تو اسی کو اگر گریفائٹ میں کارف کریں اس طرح سے اسی وے میں تو کیسے بنے گی. تو یہ 2-3 چیزیں تھیں پلس میرے پاس ٹولز نہیں تھے. آئی ڈونٹ نو واٹ ٹولز ٹو یوز فار دیز. مہوش سلطانہ قینوس پینٹنگ کاونگ منییچر کے ساتھ ساتھ ٹیٹو آرٹسٹ بھی ہیں. پینسلز پر چھوٹی چھوٹی اشکال اور ڈیزائن بنانے کا فن اپنی مثال آپ ہے. کیمرہ مین منان کے ساتھ اکثر شیخ، سٹی 21. اور امریکی فنکار پاکستان کی میزبانی کے معترف ہو گئے. مزید بتا رہے ہیں سید زبیر راشد. بالکل دیکھیے اس وقت ہم موجود ہیں آرٹس کونسل پاکستان میں اور آج ورلڈ کلچر فیسٹیول کا 32واں روز ہے اور یہاں پر مختلف ثقافت کے جو رنگ ہیں وہ ہمیں نمایاں طور پہ دیکھنے کو نظر آتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے آئی جو فنکارہ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے آپ کی بات کراتے ہیں. ویلکم ٹو پاکستان. Thank you very much. How are you doing? Very well. It's been great to be in Pakistan. Great. In the participation, you have been associated with the culture festival for last 3 to 4 days. How's your experience going on in Karachi especially? And the culture festival is the traditional, there is a lot of traditional activities going on. So what would you like to say? It's just been really fun to be here. It was really exciting to share a performance with the audience. The audience in Pakistan and in Karachi loved physical theater and mime, and it was really fun, and it's been so fun to meet all the other international performers. Oh, that's cool. You had conducted the workshop as well. We taught a workshop, yeah. So how was it? Oh, it was really fun. It's really exciting to share. I mean, being here is so special because what we do is physical performance without any language, and so to be able to share that and show that you can travel all over the world and perform without language and just using your body, I think is really fun and special to share with the students. Oh, that's great. Okay, you are going back to the US at night, today at night now. Yes. So any particular thing that you will going to remember regarding Pakistanis? Oh, goodness. Yeah, I mean, I'll remember the people are so kind. All of the people here, the culture is very, very giving, and that is really beautiful to see. And the ways in which so many people are so similar also to the way it is at home, I'll remember that. And the art is so beautiful, so welcoming. So welcoming. Any message would you like to give to the audience, especially in Pakistan and especially from US? Just keep making art and keep sharing culture and keep following your passion, and to go see things, go see art that's being made. If you can, go get out and see what's happening. Exactly. Thank you so much, and we always welcome you in Pakistan and especially in Karachi. Thank you to being with us. امریکن فنکارہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھیں. بڑی خوبصورت سی بات انہوں نے کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج ان کی کیونکہ وطن واپس یو ایس اے پہنچ رہی ہیں تو بہت سی یادوں کے ساتھ جو ہے آج یہ شہر کراچی سے رخصت ہوں گی اور امریکہ میں لوگوں کو بتائیں گی کہ پاکستانی کتنے ہمدرد و کتنے دل والے جو ہوتے ہیں. جی فی الوقت اتنا ہی.